Hello, my dear student. Let us continue chapter number 2, and our topic is structure of viruses. In previous lecture, we studied about viruses, definition of viruses. Okay, viruses, what is a poisonous material? It is a venom. Okay, and this word was given by this scientist Pasteur. Okay, क्लियर. अलग अलग साइंटिस्ट ने वायरस के बारे में क्या स्टेटमेंट दिए, क्या डिस्कवरी की, वो हमने ऑलरेडी लर्न कर दिया है. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस. आज हम क्या लर्न करने वाले हैं बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस. चलो आज तो वायरस बने किससे बेटा? तो फर्स्ट पॉइंट, वायरस इज नॉन सेल्युलर ऑर्गेनिज्म. सेल से बना नहीं है. समझ में आया बेटा? क्लियर? ओके, चलो किससे बना है? तो वायरसेस आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन. वायरसेस आर मेड अप ऑफ, किससे बना है? न्यूक्लियोप्रोटीन. इंपॉर्टेंट, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन. Which nucleic acids are present? There are two type of nucleic acid, as we all know that. First is DNA. What is the full form of DNA? चलो बोलो. DNA का फुल फॉर्म बोलो. Yes, deoxyribonucleic acid means DNA. That is a genetic material, है ना बेटा? Second is RNA, ribonucleic acid. Okay, clear? वायरसेस के अंदर क्या प्रेजेंट है? दोनों साथ में कभी होते नहीं है. तो वायरसेस कंसिस्ट ऑफ आइदर डीएनए और आरएनए. बोथ डीएनए एंड आरएनए नेवर प्रेजेंट टुगेदर इन वायरसेस. दोनों कभी साथ में होते नहीं है. इंपॉर्टेंट. ओके, so the nucleic acid of viruses are made up of nucleoprotein, and here the nucleic acid is DNA or RNA. Both nucleic acid never present in a single viruses. उसके अंदर या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा. दोनों कभी साथ में प्रेजेंट नहीं होंगे बेटा. ओके, चलो. It is also made up of protein. Clear? This part. Okay, tail fiber. Okay बेटा, this head. This part is made up of protein. Clear? The viruses are made up of nucleic acid plus protein. Nucleic acid कौन कौन से हो सकते हैं? Either DNA और RNA. दोनों कभी साथ में नहीं होंगे. Okay, next point. Genetic material is infectious. तो वायरस में इन्फेक्शन कौन करता है? प्रोटीन ना बिना. That genetic material, the DNA or RNA, they cause infections. So here genetic material is infectious. याद रखना है. In viruses, genetic material is infectious. वो infection करता है कौन? वे DNA या तो RNA. Okay बेटा. Mainly there are three type of viruses. Mainly there are three type of viruses. Plant viruses which infect plant cell. Animal viruses which infect animal cell. And bacterial viruses which is also known as bacteriophage. ये किसके डायग्राम है बेटा? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस की. नाम क्या है उसका? बैक्टीरियोफेज. The virus which infect bacteria, they are known as bacterial viruses or bacteriophage. Okay, तो आ जाओ. So there are three types of viruses. Plant viruses which infect plants. And the genetic material, most important, ये नीट में आता है. The genetic material of plant viruses is consist of single stranded RNA. या तो ऐसा लिखा होगा SSRNA, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. RNA की सिंगल स्ट्रैंड ही होती है तो भी प्लांट के अंदर डिजीज करता है. बिकॉज देन जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस. याद रखना है. प्लांट वायरसेस SSRNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. Animal viruses which infect animals. Okay, the genetic material may be, याद रखना है आपको, most important. The genetic material of animal viruses are single or double stranded RNA. RNA होगा, single stranded भी हो सकता है, double stranded भी हो सकता है,
एंड डीएनए, कौन सा डीएनए? देखो आरएनए नहीं होगा, तो इन सम वायरसेस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज प्रेजेंट एज अ जेनेटिक मटेरियल। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर? इन एनिमल वायरसेस जेनेटिक मटेरियल आर मे बी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तीन में से कोई एक होगा, दो कभी साथ में नहीं होंगे, याद रखना, ओके बेटा? चलो, now third one is bacterial viruses, which is also known as bacteriophage. phage का मतलब क्या है? The viruses which engulf, phage का मतलब क्या है? engulf करने वाला, बैक्टीरिया को engulf कर देता है, तोड़ देता है, मार देता है, they are known as bacteriophage. This is the structure of bacteriophage. Most important diagrammatic question for NEET. ओके, नीट में बहुत बार डायग्राम बेस्ड एमसीक्यू आता है, उसमें ये आता है, ये और ये दोनों हमारी एनसीईआरटी में दिया है। एनसीईआरटी की हर एक डायग्राम का परफेक्टली लेबलिंग हमें आना चाहिए बेटा, उसमें डैम श्योर एवरी ईयर एमसीक्यू आता ही है, क्लियर? 11th की एनसीईआरटी एंड 12th की एनसीईआरटी के हर एक डायग्राम हमें लर्न करने हैं। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि हर एक डायग्राम 5 टाइम्स ड्रॉ कीजिए, लेकिन उसका लेबलिंग, ईच एंड एवरी लेबलिंग आपको आना ही चाहिए। तो आपके 5 एमसीक्यू मिनिमम 5 to 7 एमसीक्यू आर डायग्राम बेस्ड एमसीक्यू, आपको क्लियर हो जाएगी बेटा, है ना? ओके, चलो आ जाए। सो थर्ड types are bacterioviruses. It is also known as bacteriophage, which infect bacteria, and the genetic material is double-stranded DNA. कौन सा DNA है? Double-stranded DNA. Clear? This diagram is most important for 2 mark. अलग से आपको डायग्राम की ड्राइंग भी पूछेंगे। Draw the labeled diagram of bacteriophage or bacterioviruses. तो आपको ये डायग्राम तब ड्रॉ करनी है। चलो आ जाओ, चलो लर्न करते हैं। Bacteriophage is made up of head, collar, sheath, and tail fiber. Here, this head is made up of capsid. किससे बना है बेटा? Capsid. It is a protein part, and capsid is made up of capsomer. याद रखना है। Clear? Head generally consists of capsid, and capsid is made up of capsomer. ये सब क्या है? Proteins है बेटा। देखो ये capsomers है, ये प्लांट वायरसेस के कैप्सोमर है, ओके? ये हेड का फंक्शन क्या है? दे प्रोटेक्ट न्यूक्लिक एसिड। हेड क्या करता है? ये कैप्सिड है, वो क्या करता है? हेड इज आल्सो नोन एज कैप्सिड, एंड कैप्सिड कैसे बनता है? कैप्सोमर से बनता है। फंक्शन इज प्रोटेक्ट न्यूक्लिक एसिड। अंदर न्यूक्लिक एसिड है बेटा। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि किससे बना है, तो यार ये बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियल वायरस, तो उसका जेनेटिक मटेरियल कौन है? यस, हमारी बुक में नहीं लिखा है यहाँ पे, लेकिन हमें पता है, दिस इज BS-DNA, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, हमको पता ही होना चाहिए, ओके बेटा? चलो, तो हियर इनसाइड कैप्सिड डीएनए इज प्रोटेक्टेड, समझ में आया बेटा? कैप्सिड के नीचे क्या है? कॉलर है बेटा, कॉलर के नीचे शीथ, और शीथ के अंदर आपको जो दिखता है स्पाइरल कॉइल्ड स्ट्रक्चर, वो स्प्रिंग लाइन होता है, इन्फेक्शन में हेल्प करता है। जब बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करना है ना, तो ये स्ट्रक्चर इतना शॉर्ट हो जाता है, ओके? चलो, आपको रेड कलर के दिखते हैं, वो क्या है? टेल फाइबर है, जिससे वो मूव कर सकता है। एंड एट द लोअर बेस देयर इज अ बेस प्लेट, ओके, जिससे वो बैक्टीरिया के सरफेस पर बैठता है। विद द हेल्प ऑफ स्पाइक, स्पाइक से क्या करेगा? बैक्टीरिया की सेल वॉल पर छोटे छोटे पोर्स बनाएगा, किसकी हेल्प से? स्पाइक की हेल्प से। ये स्पाइक का स्ट्रक्चर कैसे होता है? थॉर्न के जैसा होता है, कांटे के जैसा होता है, और वो क्या करता है? स्पाइक बैक्टीरिया के जो सेल वॉल होते हैं ना, उसमें छोटे छोटे पोर बनाता है, और पोर बना के ये स्प्रिंग है वो जोर से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और फटक कर का उसके डीएनए का इंजेक्शन लग जाता है बैक्टीरिया के अंदर। क्लियर? बैक्टीरिया को इन्फेक्शन होता है बेटा, तब ये खाली डीएनए ही अंदर जाता है बैक्टीरिया के अंदर, बाकी का जो पूरा पोर्शन है वो बाहर ही रहता है। समझ में आया? ये सब आपको बैचलर में, कॉलेजेस में सब कुछ आएगा बेटे,
इतना समझ में आया? Clear? This is bacteriophage. Base plate. This is a spike. Okay, make pore in the cell wall of bacteria. Okay, structure is most important. Okay, बेटा चलो आ जाओ. Now here the head consists of capsid, and this capsid is made up of capsomer. इसे बनाया है capsomer से. Okay, the shape of the capsomer are of two type. Here polyhedron. ये आपको दिखता है, ये शेप कैसा है? पोलीहेड्रल, बहुत सारे एंगल वाला, दैट इज नोन एज पोलीहेड्रल. ये भी दिखता है इसको. पोलीहेड्रल कैप्सोमर इज प्रेजेंट इन डैश. तो आंसर क्या आएगा? बैक्टीरियोफेज. Where is it? Some plant viruses, the capsomer is helical. ये कैप्सोमर कैसा शेप दिखता है? हेलिकल. उसके अंदर आरएनए कैसा है? हेलिकल, ट्विस्टेड है ना. दिस इज हेलिकल कैप्सोमर. Clear? The helical capsomer is present in which viruses? Answer is TMV. Full form बोलो. TMV का full form बोलो. Yes. Tobacco mosaic viruses. Yes. Clear बेटा? Okay. इतना clear सबको? अब next. Viruses cause infection in, इसके अंदर infection रहता है, animals as well as in plants. तो animals के अंदर कौन कौन सी infection करता है? लिस्ट याद रखनी है. मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा. क्लियर? एड्स. एड्स caused by which viruses? HIV. What is the full form of AIDS? AIDS का full form बोलो भाई. Acquired immunodeficiency syndrome. AIDS का full form बोलो, एग्जाम में आएगा बेटा. Acquired immunodeficiency syndrome. कौन करता है? HIV. फुल फॉर्म बोला एचआईवी का. यस, 10th में आया था ये सब, ये मुझे पता है. ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. ह्यूमन की इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट करने वाला वायरस, दैट इज नोन एज एचआईवी वायरस. जब उससे इंफेक्शन लगता है तो कोई आपको बचा नहीं पाता. क्या हो जाता है? एड्स. ओके बेटा, तो भाई वायरसेस कॉज इन्फेक्शन इन प्लांट. एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. मम्स, smallpox, herpes, influenza and AIDS. Next, it also causes disease in plants. कौन-कौन से disease करता है? चलो आ जाओ. Mosaic formation, root के अंदर nodule formation करता है, that is known as mosaic formation. Leaf rolling, ये जो leaf खुले होते हैं उसको बंद कर देता है बेटा plant के अंदर. Curling, leaf को पूरा कर्ल बना देता है. Yellowing, generally leaf is green in color because it consist of chloroplast. उसके अंदर बहुत सारा chloroplast है, in which chlorophyll pigment is present. Chlorophyll pigment is green in color, that's why leaf green in color. लेकिन वायरस क्या करेगा बेटा? इन्फेक्शन करेगा ना, तो जितना भी क्लोरोफिल है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा. तो लीफ का कलर कैसा हो जाएगा? येलोइंग. लीफ अपने लिए पूरी नहीं बना पाएगा बेचारा, लीफ मर जाएगा, है ना. चलो, वेन क्लियरिंग. लीफ की वेन के अंदर क्या होता है? चलो बोलो. लिप की वेन के अंदर क्या होता है? यस, बोलिए बेटे. यस, जाइलम एंड फ्लोएम. तो वो जाइलम एंड फ्लोएम को क्लियर कर देता है, तोड़ देता है. अब सोचो, इफ द लिप डू नॉट हैव जाइलम एंड फ्लोएम तो उसको वाटर कैसे मिलेगा? वो पूरे प्लांट के अंदर फूड कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा? प्रॉब्लम हो जाएगा ना, एंटायर प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो वेन क्लियरिंग, ओके. ड्वार्फिंग, प्लांट को ड्वार्फ बना देता है, ड्वार्फनेस. ओके, टॉल प्लांट को, सपोज सीड तो टॉल प्लांट का होता है, लेकिन वायरसेस ऐसे चेंज कर देता है प्लांट के सीड को, जो प्लांट न्यू फॉर्म होगा ना वो ड्वार्फ होगा, शॉर्ट होगा. दे आर शॉर्ट इन हाइट एंड स्टंटेड ग्रोथ. ओवरऑल जो ग्रोथ होगा वो स्टॉप हो जाएगा, दैट इज नोन एज प्लांट स्टंटेड ग्रोथ. प्लांट का जो ओवरऑल ग्रोथ होगा वो स्टॉप हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? स्टंटेड ग्रोथ. क्लियर बेटा? ओके, समझ में आया? तो ये हमारा कौन सा टॉपिक फिनिश हुआ? वायरसेस वाला टॉपिक फिनिश हुआ. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट. वायरसेस मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए. ओके, डीएनए होगा या आरएनए होगा, समझ में आया? 3 टाइप्स के वायरसेस है. फर्स्ट, प्लांट वायरसेस, जेनेटिक मटेरियल, एसएसआरएनए. सेकेंड, एनिमल वायरसेस, जेनेटिक मटेरियल, तीनों टाइप के, एसएसआरएनए, डीएसआरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, एंड थर्ड
DSDNA, double stranded DNA. थर्ड बैक्टीरियोवायरसेस जिसको बैक्टीरियोफेज भी बोलते हैं. ओके, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज प्रेजेंट. इंपॉर्टेंट. क्लियर? ये किसका स्ट्रक्चर बैक्टीरियोफेज का, ये किसका स्ट्रक्चर है? TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस का स्ट्रक्चर है. हमारे बुक के अंदर मस्त दिया है टोबैको मोज़ेक वायरस. क्लियर? वायरस किससे बनता है? कैप्सोमर से. कैप्सोमर मतलब प्रोटीन, और उसके अंदर यहाँ हेलिकली कौन अरेंज हुआ है? RNA. समझ में आया बेटा? Viruses can cause infections in animals as well as plants. इन्फेक्शन कौन सी करता है उसके नाम याद रखने हैं. नीट के एमसीक्यू में आते हैं. ओके, और प्लांट में इन्फेक्शन में क्या करता है वो याद रखना है. समझ में आया? क्लियर? मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक. ओके, our next topic is viroids and prions. Most important topic. दोनों में से नीट में MCQs आते ही हैं. ओके, बोर्ड के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट, नीट के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट. चलो आ जाओ बेटा. व्हाट इज वायरॉइड्स? वायरॉइड्स आर स्मॉलर देन वायरसेस. वायरसेस से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे वायरसेस होते हैं. दे आर नोन एज वायरॉइड्स. समझ में आया बेटा? क्लियर? समझ में आया? ओके, चलो. वायरॉइड आर डिस्कवर्ड बाय विच साइंटिस्ट? किसने डिस्कवर किया? नीट का एमसीक्यू पूछा गया था. The viroids are smallest than viruses and was discovered by Theo Diner in 1971. Year भी याद रखना है. नाम क्या है? Theo Diner. समझ में आया? He discovered viroids. Viroids is smallest self-replicating particle. ये कैसे बेटा? smallest है और अपने आप अपना replication कर सकता है ऐसे particle से. Okay बेटा, and they are made up of, most important, they are made up of circular single stranded RNA. Clear? So the viroids are made up of circular molecule of ssRNA. SS मतलब single stranded RNA. Without capsid, there is no capsid. Capsid नहीं है, खाली किससे बना है? ssRNA, और वो भी सर्कुलर. नीट की एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए लीनियर लिखा होता है. लीनियर, लीनियर मीन्स सीधा. ये तो सर्कुलर ssRNA है, ध्यान रखना. ओके बेटा? विदाउट कैप्सिड, देयर इज नो कैप्सिड. कैप्सिड नहीं है बेटा. इट लैक्स प्रोटीन कोड. प्रोटीन कोड एब्सेंट है, कैप्सिड एब्सेंट है भाई. यस, तो उसके पास क्या है जो इन्फेक्शन करता है? तो इट हैज अ फ्री RNA ऑफ लो मोलेकुलर वेट. ये भी नीट का एमसीक्यू बेटा सेंटेंस आता है कि वायरॉइड कंसिस्ट ऑफ फ्री RNA मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर वेट कैसा होता है? लोअर. मोस्ट इंपोर्टेंट. क्लियर? नो प्रोटीन कोड. बना किससे है? मेड अप ऑफ ssRNA, फ्री सिंगल स्ट्रैंडेड RNA which having low molecular weight. Important. Viral cause disease in plants only. प्लांट भी डिजीज करता है, एनिमल में नहीं करता है भाई. कौन सा डिजीज? PSTD. समझ में आया? पोटैटो के अंदर डिजीज करता है. नाम याद रखना है, फुल फॉर्म भी पूछते हैं. पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इन पोटैटो प्लांट. ये पोटैटो प्लांट होता है तो उसके अंदर डिजीज किसके थ्रू होता है? वायरॉइड के थ्रू हो सकता है. डिजीज का नाम है PSTD, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज. याद रखना है. समझ में आया? क्लियर? ओके. सेकेंड, इट कॉज डिजीज इन लेमन ट्री. जो एकदम खट्टे फ्रूट होते हैं ना उसके अंदर भी डिसीज करता है. नाम है साइट्रस एक्सोकॉर्टिस. समझ में आया? साइट्रस एक्सोकॉर्टिस किसके थ्रू होता है? वायरॉइड के थ्रू. सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट. देख लेते हैं शॉर्ट में. चलो. वायरॉइड आर स्मॉलर देन वायरसेस. Viroid discovered by Theo Diner in which year? 1971. समझ में आया? जेनेटिक मटेरियल क्या है भाई? सर्कुलर ssRNA. याद रखना है. मॉलिक्यूलर वेट कैसा है? लोअर. कैप्सिड है? नो कैप्सिड. विदाउट प्रोटीन कोड. कैप्सिड है क्या? प्रोटीन का कोट है, इसमें एब्सेंट है? नहीं है. डिजीज करता है? हाँ भी करता है. किसके अंदर? ओनली प्लांट के अंदर. PSTD, फुल फॉर्म पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इन प्लांट. क्लियर? वायरॉइड के बारे में क्लियर? ओके, वेरी गुड.
नेक्स्ट prions, फुल फॉर्म प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल। प्रायॉन्स नाम कहाँ से आया है? लोग प्रायॉन्स भी बोलते हैं, प्रियॉन्स भी बोलते हैं। प्रायॉन्स नाम कहाँ से आया? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली। अभी हमने वायरॉइड क्या देखा? वायरॉइड आरएनए से बना है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विथ लोअर मॉलिक्यूलर वेट। ये तो आरएनए से भी नहीं है, डीएनए भी नहीं है, खाली प्रोटीन ही है, तो भी जोरदार इन्फेक्शन करता है। सोचो, तो प्रायॉन्स आर स्मॉलर देन वायरसेस एंड वायरॉइड्स। सबसे छोटू कौन? प्रायॉन्स, है ना बेटा। प्रायॉन्स वाज डिस्कवर्ड बाय स्टैनली क्रूजिनर। साइंटिस्ट का नाम क्या है बेटा? स्टैनली क्रूजिनर। and he was awarded Nobel Prize in which year? 1998. Clear? प्रायॉन्स की डिस्कवरी किसने की? स्टैनली क्रूजिनर ने। उसके लिए उसको क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। प्रायॉन्स कंटेन नो जेनेटिक मटेरियल, neither DNA nor RNA। उसके पास एक भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है। किससे बना है? इट इज अ प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल। प्रोटीन का ही बना है और प्रोटीन इन्फेक्शन करता है। समझ में आया? क्लियर? वायरॉइड्स, वायरसेस में कौन इन्फेक्शन करता है? उसका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शन करता है। और प्रियॉन्स में कौन इन्फेक्शन करता है? प्रोटीन इन्फेक्शन करता है। ध्यान रखना, ओके। एंड दे आर रिस्पांसिबल फॉर डीजनरेटिव डिजीज। एक बार डिजीज हो गया ना, फिर उसकी कोई मेडिसिन ही नहीं है, तो इट इज रिस्पांसिबल डीजनरेटिव डिजीज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका डिजीज करता है। समझ में आया? इन ह्यूमन एज वेल एज एनिमल। क्लियर? डिजीज का नाम तो देखो, सीजेडी, बीएससी। फुल फॉर्म बहुत पूछते हैं। सीजेडी का फुल फॉर्म क्रोन्स-फेल्ट-जैकोब डिजीज। क्रोन्स-फेल्ट-जैकोब डिजीज caused by prions। and BSE, bovine spongiform encephalopathy। रिपीट करती हूँ, bovine spongiform encephalopathy। It is also known as mad cow disease। उसको क्या बोलते हैं बेटा? mad cow disease बोलते हैं। समझ में आया? नर्वस सिस्टम को एकदम डेंजर इफेक्ट होता है दोनों डिजीज में, सीजेडी क्रोन्स-फेल्ट-जैकोब डिजीज एंड बीएसई बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। इसका नाम दूसरा क्या है? मेड काउ डिजीज। कौन करता है बेटा? प्रायॉन्स करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर? फॉर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज नीट एग्जाम। क्लियर बेटा? ओके। तो इसी के साथ अभी एक टॉपिक बाकी है, सॉल्व।